everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav, and in this video we are going to continue the question that we started in the previous video, that was partial equals sum subset, right? So it is a part 2 of that particular question. So let me just write it. Partial equal sum subset part 2. Okay, so it is a question that we are ongoing in our DP series. So the question in the previous video, what I did, I discussed the basic approach, that how we are I reduced the problem into two simple things, then we discussed about it, and in today's video we'll discuss little bit more about it, about the algorithm, and then we'll directly jump into the code, that how to write the code and all the things. So this video is going to be very important, so do watch it till the end. And before that, I want to discuss about Newton School, right? So Newton School has only provided me the opportunity to interact with you guys and to learn and grow together, right? So talking about Newton School is a platform which helps you to build your career in tech specifically. It is a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer, and after that Newton School आपकी help करेगा to get placed. Newton School is connected to a lot of companies and it helps you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got selected, right? So after you got selected, then you have to pay the Newton School from the pay which you will be getting. आपकी company में job लग गई, you are getting some salary, and from that some part you have to give to Newton School. And this is how it works, and this is a really amazing project, and this you should for sure enroll in it. It is a very amazing opportunity. So this was it for Newton School. If you are interested in it, do enroll in it as soon as possible. Link will be in the description, do check it out. Now talking about partial equal sum subset. So let's get started. Before moving to the code part, let's take a quick recap of what we did. So firstly we started with partial equal sum subset. We understood कि कैसे होता है. तो यहाँ पे जैसे 1, 5, 11 and 5 we have taken the index. इसमें हम देख रहे थे कि क्या हम दो सबसेट बना पा रहे हैं जिनका सम इक्वल है. अगर एक भी सबसेट मिल गया, इसका सम बाय 2 है, तो दूसरे का सम बाय 2 होगा ही ऑब्वियसली. एंड विद दिस वी चेक कि यार क्या 1, 2, 3, 4 में बन सकता है. नो, नहीं बन सकता था. देन वी मूव टू दिस कि क्या 1, 5, 11, 5 है, तो ये है. तो हमारा फाइनल गोल क्या है? तो हमारा फाइनल गोल क्या था कि हमें एक ऐसा पार्टीशन चाहिए था जो इक्वल सम हो और सबसेट हो ऑफ द गिवन एरे, राइट? तो उस गिवन एरे के लिए हमने हमारे जो फाइनल गोल थे वो ये थे कि मेक 2 सबसेट of the given array and both the subset should have equal sum. If both the subset should have equal sum, तो अगर टोटल सम सब है तो both सबसेट का सम बाय 2 होगा. फिर हमने ये डिड्यूस किया कि अगर जो दो सबसेट है, अगर एक सबसेट हमने एक ही सबसेट फाइंड कर लिया जिसका सम बाय 2 है, तो क्या दूसरी का सबसेट सम बाय 2 दूसरी सबसेट का सम बाय 2 होगा ही होगा? Yes, obviously, of course it will be. Okay, so now we finally reduced the problem to a single statement. You have to find a subset with a given sum s by 2, right? ये पूरी प्रॉब्लम हमने सबसेट विद अ गिवन सम में कन्वर्ट कर ली है, राइट? दिस इज हाउ वी रिड्यूस द प्रॉब्लम. नाउ पार्टीशन इक्वल सम सब एरे, इसके 2 स्टेप थे. तो 2 स्टेप में हमने क्या किया था? एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज दैट कि अगर मेरे टोटल सम मेरी 11 है, राइट? तो 11 को आई कैन नॉट डिवाइड इक्वली इन 2 पार्ट्स considering all the elements are integer, right? It is given in the question all the elements are integer, I and t. So you cannot distribute simply, okay, these are the things and these are the things. No, you cannot do that. So to refrain from that, what you do, हमने क्या किया था उसका कि यहाँ पे हमने चेक कर लिया टोटल सम. अगर सम मेरा ऑड है तब तो यहाँ से हम यहीं से टाटा बाय बाय हो गए. अगर इवन है देन वी प्रोसीडेड, एंड अगर इवन है तब मुझे क्या एक फाइंड करना है, एक सबसेट फाइंड करना है जिसका सम बाय 2 है. देन वी फाइंड कि हम सबसेट सम बाय 2 कैसे फाइंड करते हैं, राइट? तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक सब एरे ले लिया. अब उसमें वापस हमने केस डाले कि अगर जैसे हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं तो गिवन सम है, तो रिकर्सिवली मैं क्या करूँगा कि पहले पूरी एरे पे सम है, तो मैं इस पे कॉल लगाऊंगा सम, मतलब इस पे नहीं, मतलब लेट मी जस्ट क्लैरिफाइड. फिर मैं इसमें कॉल लगाऊंगा सम बाय 2 की. क्या इसमें मैं कोई फाइंड कर सकता है? इसमें सम बाय 2 है. फिर उसमें रिकर्सिवली कॉल करूँगा सम बाय 2 में, क्या सम बाय 2 है? क्या सम बाय 2 में सम बाय 2 है? ऐसे करके आई विल फाइनली रीच टू अ पॉइंट. क्या अगर मेरा आंसर 0 आ गया, राइट? तो इट इज़ मोर लाइक ए नैपसैक प्रॉब्लम कि मैं उठाता गया एंड में अगर मेरा ये एम्प्टी हो गया कंटेनर, मतलब मैंने सारी गोलियाँ उठा ली है, ठीक है,
सारी गोलियां उठा ली, एम्प्टी हो गया कंटेनर, तो ओके आई हैव गॉट द आंसर। हाँ, एक पॉसिबल है जिसका सम बाय 2 हुआ है, क्योंकि हमने शुरुआत में तो सम बाय 2 से इनिशियलाइज करके शुरू किया था, है ना। और अगर मेरा सम नेगेटिव हो गया, सम नेगेटिव मतलब मैंने एक गोली एक्स्ट्रा ले ली यहाँ से जो कंटेनर में है ही नहीं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, कंटेनर में है ही नहीं तो लूँगा कैसे, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड पोजीशन इज़ ग्रेटर देन एंड। अगर मैं मतलब ये तो सिंपल फॉर लूप वाली कंडीशन है कि अगर मैं एरे की लिमिट ही एक्सीड कर गया, मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी आप एक्सटेंड जिस एक्सटेंड तक आ गए वहाँ से आंसर नहीं मिला तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद ये नैपसैक वाली कंडीशन हमने डाली है। तो पहली वाली में है कि अगर मैं एलिमेंट चूज़ कर लेता हूँ, अगर मैं एलिमेंट चूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, POS+1, POS इज़ द ith इंडेक्स यू कैन से, तो POS+1 सम माइनस नंबर ऑफ POS, मतलब मैंने वो जो POS पे एलिमेंट था वो ले लिया और मैं अगले एलिमेंट के लिए कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव टेकन द एलिमेंट, मैंने उस एलिमेंट को सम में ऐड कर लिया, ऐसा मान लो, ठीक है। और दूसरा है सबसे POS+1 है, मतलब मैंने अगले एलिमेंट पे चलाऊंगा पर मेरा सम उतना ही है जो पहले था, मतलब मैंने प्रीवियस एलिमेंट लिया ही नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट नहीं लिया तो ये है। तो दिस वाज हाउ वी वाज रिकर्सिवली कॉलिंग। सो नाउ लेट्स जंप टू द कोड पार्ट, दैट हाउ वी विल कोड दिस, ओके। सो डोंट वरी, कोड में भी हम अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी हैव टू डू ऑल द स्टफ। सो हियर वी आर, तो लेट मी जस्ट इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स मूव द कैन पार्टीशन सिस्टम रख लिया और उसमें मेरे पास एक इनपुट है, वेक्टर ऑफ इंट एंड वेक्टर ऑफ इंट एंड दिस आई एम हैविंग, ओके। सो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास ये जो सम है वो ऑड है या नहीं है। दिस वाज द स्टेप 1, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि इंट सम इज इक्वल्स टू 0 कर लिया, n इज इक्वल्स टू num डॉट साइज, राइट। ये हमने दो चीज़ें इनिशियलाइज कर ली। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम ऑफ i, राइट। तो ये क्या करेगा कि इटरेट करके मेरे पास सारी चीज़ों के सम कैलकुलेट कर लेगा। नाउ इफ सम एंड 1, तब मुझे क्या करना है, रिटर्न 0। अगर मेरा सम ही ऑड है तो कोई मतलब है ही नहीं, तो मैं फॉल्स रिटर्न करवा दूंगा। और अगर मेरा सम इवन है तब यहाँ पे गेम शुरू होता है, ओके। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेमोराइजेशन करना है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं मैम नाम से, मैम मीन्स मेमोराइजेशन। तो अब अगर मेरा आंसर है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैम डॉट क्लियर, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू जस्ट फर्स्ट क्लियर आउट ऑल द वेक्टर एरे। अगर उसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर कुछ पड़ा, वैसे नहीं पड़ा होता पर फिर भी इट इज़ अ बेटर प्रैक्टिस। मैम डॉट रीसाइज, अब मैं उसमें एक एरे बनाऊंगा जिसमें साइज़ होगा n+1, ओके। सो हाउ माई डीपी एरे विल लुक लाइक, माई डीपी एरे विल लुक लाइक कि यहाँ पे ऑन द रो वी विल बी हैविंग ऑल द एलिमेंट्स, राइट। n, what is the n is like the nums dot size, right। मेरे एरे का साइज़ है उतना n, और वहाँ पे जो मेरे को सम बाय 2, तो सम बाय 2 क्या होगा कि वो एट द एंड जो मेरा राइट मोस्ट बॉटम एलिमेंट है ना, वो क्या, ट्राई टू इमेजिन इट इन द डीपी टेबल, द राइट मोस्ट बॉटम एलिमेंट व्हाट विल इट कंटेन, इट विल कंटेन कि इस n तक सम बाय 2 बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। इट विल बी अ बूल वेक्टर इंट है, पर इंट में हम ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, 0 1 कर। सो मैंने क्या किया कि यहाँ पे फिर इसको वेक्टर इंट, मेरा क्या बोला था मैंने आपको कि सम बाय 2 +1, -1 से इनिशियलाइज कर दिया है मैंने सारी चीज़ को। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन, क्या नाम दें इसको फंक्शन को, सबसेट सम, लेट्स से सबसेट सम। इसमें मैं 4 इनपुट देने वाला है, नम्स n 0 एंड लेट्स से सम बाय 2, राइट। तो अभी मैं इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, देन यू विल बी हैविंग अ मच मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आई हैव रिटन हियर। सो इट इज़ ऑल्सो ऑफ टाइप बूल, सबसेट लेट्स से वी मेक दिस मेमोराइजेशन टेबल ऑल्सो बूल, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी। तो
सबसेट सम आई एम हैविंग, तो इसमें जो पहली है वो है वेक्टर ऑफ int num I am having, second thing is int n, the third thing that I am having is int position it is, क्योंकि मैंने 0 से इनिशियलाइज करता है कि मैंने आपको बताया कि 0 1 2 3 ऐसे चलेंगे, एंड फोर्थ इज int sum जो मेरा टारगेट सम रहने वाला है। तो आपके इसके बेस केसेस मैंने डिस्कस किए थे कि अगर मेरा सम ही 0 है तब मैं रिटर्न ट्रू कराऊंगा, राइट। इफ़ माई सम इज़ नेगेटिव, अगर मेरा सम नेगेटिव है और मेरा पोजीशन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये दोनों कंडीशन में ही आई एम आउट ऑफ बाउंड्स, राइट। रिटर्न फॉल्स करा दिया मैंने। अब यहाँ पे मेमोराइजेशन करूँगा मैं कि इफ़ मेम ऑफ पॉज कॉमा सम अगर इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगर 0 नहीं है तब रिटर्न मैम पॉज कॉमा सम, राइट। व्हाट आई हैव रिटन है, हाँ। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि अगर मेमोराइजेशन कर दिया, अगर पहले से फॉल्स नहीं है, राइट, इज़ नॉट, लेट मी जस्ट टेक इट टू -1 ओनली, इंट करके -1 कर देता हूँ, इट विल बी मोर क्लियर, ओके, इट विल एक्ट लाइक फ्लैग, यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। इज़ नॉट इक्वल टू -1, तब तो मैं ये कर दूँगा, एंड वरना हम यही करेंगे कि रिटर्न दिस 0 1 स्टोर कर लेंगे, तो इट विल बी मोर एक्टिंग लाइक दैट ओनली, राइट। तो अगर मेरे पास ये नहीं तो मैंने मेमोराइज कर लिया, तो अगर मेरे पास रिजल्ट पहले से भी स्टोर नहीं तो मुझे नया रिजल्ट बताना ही पड़ेगा। तो रिटर्न मैम ऑफ पॉज सम इज इक्वल्स टू सबसेट सम। अब मुझे सम इक्वल्स टू सबसेट सम। अब इसमें मुझे क्या करना है कि नम्स एन, ये तो आएगा, राइट, नम्स एन ये तो आएगा। अब मुझे पॉज +1 करके एक में, अगर मैं सपोज करूँ ये वाला एलिमेंट ही उठा रहा हूँ, तो मुझे सब में से माइनस करना पड़ेगा नम्स ऑफ पॉज। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर मैं एलिमेंट उठा रहा हूँ तो मुझे सब में से माइनस करना पड़ेगा ना। इट इज़ मोर लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। अगर मैंने वेट उठाया तो कंटेनर में से कम हो गया, सो नाउ माई टारगेट सम विल रिड्यूस। सो और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं नहीं उठाता तो नम्स एन पॉज +1 तो हमारा होगा, बट यहाँ पे हमारा सम चेंज नहीं होने वाला। सो दिस वॉज इट। सो हमें इस प्रॉब्लम को डिड्यूस करने में 2 स्टेप लगे। एक तो सबसेट सम का हमें प्रॉब्लम कोड याद होना चाहिए, सो ये सबसेट सम का कोड है। और दूसरा जो था वो हमें यह था कि ऑड इवन हमें केस सिग्निफाई होनी चाहिए। सो दिस वॉज द कोड। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन जस्ट राइट डाउन द कोड, इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स जस्ट क्विकली recap what we studied and how we wrote down the code. Okay, so first we started with this partial equal sum subset. We understood the quotient, then we thought what was final goal was we divided the topic particularly that we wanted, right, into the thing that we can use. So partition equals some subset, so we wrote it in like that. Then we finally what we did, we reduced the problem with the help of 2 algorithms. The algorithm what we used, we reduce it in 2 steps. The first step was if the total sum is even, then only we can proceed with the answer, right? If the total sum is odd, we cannot do anything with it. So what we have to do, we have to just return false from there only. And if the total sum is even, then what you have to do, you have to find the final subset that is having sum equal to sum by 2. And if it exists, then you have to return true, else false. And that's what we did in our code. So that's what our code is. So this was it for today, guys. I hope you find the video helpful. So if you like this video, do give a thumbs up, subscribe to this channel, and thanks for watching. Also, you can enroll to an amazing opportunity that Newton School is providing you. So do like this video, subscribe to this channel, and thanks for watching.